Hello everybody. Today in this video we will be continuing the process that we were doing. The goal of this video, as I mentioned before, was that we are doing the PYQs of UPSC comprehensive, meaning that we'll be focusing upon not just upon research or upon basic analysis, but also on the aptitude. So all these three things will be applied and we'll have a comprehensive understanding of it. So this entire video could be divided into first solving the question, actually solving it using our knowledge, our logic, and the aptitude that we have built after solving the PYQs that are. Second thing would be after that we'll be focusing on research that what can we learn from the option, from the question, and lastly it would be the overall learning of it. So let's start with the first question that we have here, which talks about consider the following statement relating to the use of place value system in India. The place value system, meaning that this is an agriculture question as you can see. We can also categorize it into Asian history का question भी है, जिसमें हमें first क्या दिया है. And this is an old pattern itself. They have asked about this, like the development in the science and technology earlier, also art and culture. Also, we can place it into in these two. So the earliest ethnographic use of place value system in India is found in Manakani plates from Gujarat, and they are given a specific timeline. This Manakani plate is a very factual thing, right? So this comes to my mind that this is very factual. I've not heard about it. So I move on to the next one. I'm not sure about this particular question. In the 19th century, I think 9th century, in the 9th century, okay, the place values became general बात करें in inscription all over the India. This might seem an extreme statement, but it isn't an extreme statement because if we look at the statement, what we are saying is that it's in generally we'll be able to see. So this would be hard to disprove. It is hard to disprove. If we are able to find multiple locations, so it would be hard to disprove. Next would be that the place values have been found in Sanskrit inscription in Southeast Asia as early as 7th century. It is talking about 7th century. यहाँ पे हमारा 9th century की बात कर रहे हैं और ये हमारा 6th century के आसपास. Right. So we are seeing that timeline के basis पे है. I'm not so sure. यहाँ पे मेरा knowledge काम नहीं करता है. यहाँ पे मेरा logic भी जरूर काम कर सकता है. This might be correct because it's hard to dispute. And ये भी logic wise सही हो सकता है Southeast Asia में as early as 7th century. Because यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? Place value की बात कर रहे हैं. Southeast Asia में जहाँ पे connection India के थे, right? And there was travel of the knowledge from one place to another. So this could also be right. And it is not saying कि exactly 7th century में हुआ नहीं. जिसके basis पे we can say 2 और 3 तो सही है. 2 और 3 सही है तो ये दो option हमारे cancel हो गए. These two are wrong. I'm not so sure about this Manakani plate, but you need a different name, Manakani. So using that aptitude use, last we use करते हैं. यहाँ. So this is it. Next, move on to the next question. ये नया pattern है which talks about archaeological findings in Harappan tablets. And what we are seeing is that we have three statements and उसके basis पे कुछ inferences की गई. तो ये क्या हो सकता है? Can be. It's very generic also. So let's see. हमें बोल रहा है there is wide occurrence of spindle woods in the houses but absence of spinning wheels. ये बोल रहा है कि ये fact है. This is something we have to मानना है हमें ये है. तो ये बोल रहा है कि absence of spinning wheels something it might be there. I'm not so sure what it is. It could be with the hand also. The spinning wheel को हमें पता है advancement of technology. Weights and measurement scales complete with graduation have been discovered with back then. When the houses were built in large part with big bricks, relatively spacious courtyard with their own उनके खुद के well spacing platforms and large rooms. Okay, influences क्या? तो statement one क्या suggest करता है spinning एक laborious activity जो घर पे की थी. यहाँ पे देख लो स्पिनिंग व्हील्स की बात कर रहा है, घर की बात कर रहा है. एंड स्पिनिंग व्हील्स होता तो दिक्कत नहीं होती. व्हील की तरह चलता रहता वो एंड प्रॉब्लम होती नहीं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये बोल रहा है
स्टेटमेंट टू सजेस्ट करता है कि एक्सटेंड योर साइंटिफिक नॉलेज, दैट हरप्पन पोजेस, हाँ, weights and measurement scientific knowledge, ये बात करता है, दैट इज ट्रू। अब स्टेटमेंट थ्री क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंस कॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कम्युनिटी ओनरशिप। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब होता है कि समथिंग विच इज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। फिर क्या बात कर रहे हैं, हाउसेस बिल्ड किए गए थे लार्ज बिग ब्रिक्स के साथ, जिसमें स्पेशियस कोर्टयार्ड होता था, उनका खुद का वेल्स होते थे, बेसिक प्लेटफॉर्म और लाइफ। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, दिस कैन नॉट बी ट्रू। सो ये जो है इमर्जेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, एंड दैट वी कैन से ओनली वन। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा एप्टीट्यूड ज्यादा था, एप्टीट्यूड और लॉजिक। लॉजिक हमने यूज किया अपने इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी और यहाँ देख रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, टेका एंड बर्दोली सत्याग्रह की बात करते हैं। टेका और बर्दोली सत्याग्रह के बारे में जो हम जानना चाहते हैं, हमें ये भी दिख रहा है कि पहले देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें सिंपली क्या दिख रहा है, ये यूपीएससी पूछता है बर्दोली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू फॉर। सो हमें यहाँ मूवमेंट्स है, एक का मूवमेंट सपोर्टेड थ्रू आउट एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने, लेकिन बर्दोली से इनिशियली इंडिपेंडेंट थी, बट कांग्रेस ने उसे ओनली लास्ट स्टेज। ये गलत है, क्योंकि ये बर्दोली सत्याग्रह वही सत्याग्रह है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था, so this cannot be true. Next, Ekka movement is provided by leadership by तालुकदार ऑफ अवध। अवध में तो हुई नहीं थी, ये सीतापुर में हुई थी, हरदोई में हुई थी, नॉट इन दिस। एंड ये लैंडलेस थी मूवमेंट, लैंडलेस लेबर्स ने की थी, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बरडोली सत्याग्रह campaign against enhancement of land revenue, yes that is there। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ करने वाले थे, जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने वाले थे, एंड नॉन कोऑपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन मना कर दिया था बिकॉज ऑफ दी चौराचारी इंसिडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पे करना चाहते थे, जो हो नहीं पाया, ये जो चीज है ये सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वही लोकेशन का, यहाँ हम देख रहे हैं ज्योग्राफी के साथ गड़बड़ करी गई, यहाँ हम देख रहे हैं लीडरशिप के साथ, यहाँ हम देख रहे हैं किसने किसको सपोर्ट किया। तो दिस इज अ वेरी क्लासिक ट्रैप दैट इज बीइंग पुट बाय पीपल। सो हियर वी हैव ऑप्शंस इन दिस पैटर्न। ओके, नेक्स्ट हमारा नया पैटर्न आ जाता है। नया पैटर्न में सेंसिटिविटी होती है, पैटर्न हमने पहले भी देखा है, स्टेटमेंट देंगे उसके बेसिस पे देखेंगे कि इंफॉर्मेशन से सपोर्ट करता है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में एशियन हिस्ट्री चल रहा है हमारा। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स allowed agriculture to expand away from the plant. Irrigation from the wells allowed agriculture to expand away from the plant, and floodplains and stripes on river margins into the present Punjab and Haryana, having underground water levels reasonably close to the surface. Okay. Drought animals power was employed to draw up the water out. Okay. अब देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। There is an evidence in ऋग्वेद, ऋग्वेदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ऋग्वेद लिखा गया था कि यूज ऑफ अश्मा चक्र, दैट इज स्टोन पुली, एंड अवा, दैट इज ट्रैप वुडन पेल्स, ड्रॉप दी वाटर। ये सिंपल बात कर रहे हैं कि स्टोन पुली, यहाँ पे भी यही बात की गई है कि स्टोन पुली और उससे बात, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि अश्मा चक्र स्टोन पुली यूज किया जाता था नहीं, बस यहाँ पे लिखा है ड्रॉट एनिमल पावर वाज एम्प्लॉयड टू ड्रॉ वाटर, सो आई एम नॉट सो श्योर, बट ये जरूर बात कर रहे हैं कि हम वेल वेल से पानी निकालते, they could be one of the ways to do it. Mention have been made in Rig Veda of the use of implement of parachute, Kulisha, axe and datra और श्रेणी सिक्के। हमें ये नहीं पता, ये एग्रीकल्चर की बात, एक्स और सिक्के जो है वो हम जो बात करते हैं, इनकी जो हम बात करेंगे, these are something that are used in agriculture, ये एग्रीकल्चर में यूज होती है, ना कि हमारे इरिगेशन में यूज होते हैं, राइट। So this cannot be this. We cannot come with this. This particular statement does not support this. So हम लोग को एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ पे भी है। तो हमें थर्ड वाला तो सही दिख रहा है। Let's see, but फिर भी there is a history with the use of ox even before Rig Veda of plowing land and pulling the cart। ये हम ज्योग्राफी के हिसाब से देख सकते हैं। ये हमारे ड्रॉट एनिमल्स यूज किए गए थे ऋग्वेदिक पीरियड में।
देखिए ऋग्वेदिक पीरियड से क्या पीरियड था, हमारा हड़प्पन पीरियड था। अगर हड़प्पन पीरियड था, वी नो दैट हड़प्पन पीरियड में हम लोग ऑक्स यूज करते थे। वी आर अवेयर दैट देयर वाज यूज ऑफ एनिमल एंड देयर वाज बिल्ड आल्सो, द बिल्ड दैट फ्रॉम अर्बन ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हमारा तीन है। So by that logic, what we can say is that we are using what we use. इसमें भी हमारा एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा यूज हुआ, लेकिन एप्टीट्यूड में हमारा लॉजिक यूज हुआ। लॉजिक के साथ साथ we were also able to use a very, whether it is possible or not, जैसे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन हैपन, एंड ये सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना ड्रॉट एनिमल्स अभी ऋग्वेदिक में हो तो उससे पहले तो होंगे ना, लोगों को जानकारी तो होगी। एंड इट इज वन ऑफ द थ्योरीज suggests that the people from the Harappan period moved towards the eastern side, and they are the one who are known as the Vedic period. But this is one of the possibilities and theories that are given. So there's a possibility that this could be true. So for this we have answer C. So we have we are left with one more question. That is question number 6. Let's move on to the sixth one. Sixth question जो हमारा है लास्ट का जो ये बात कर रही है आर्ट एंड कल्चर का दोबारा आर्ट एशियन हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर में की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हली सांसद पेंटिंग बात केव्स पहले पीवाईटी में पूछा था। हमें नहीं पता हली सांसद इट्स अ वेरी न्यू वर्ड, बट हमें इतना पता है कि इट्स अ वर्ड व्हिच कुड बी ब्रोकन डाउन। सालसा इज अ काइंड ऑफ अ डांस, हली सांसद। यहाँ पे बुद्धा इन मेडिटेटिव पोज, हमें ये पता है मैत्री एक फ्यूचर बुद्धा होता है। We know that Buddha in meditative pose is not known as Hali Sasana. And बात ये है, बाद में अगर हम यहाँ देखें, if we analyze the option थोड़ा थोड़ा अच्छे से, we are able to see कि यहाँ पे बात कर रहा है कैलाशा पे शिवा और पार्वती। ये तो एलोरा केव की बात ज्यादा लग ही रही है, एलोरा केव में हो सकता है चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन की बात कर रहा है, विच आई एम नॉट सो श्योर। सो एक तो ये हो सकता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते because meditative was, you know, there are other pictures that are there, and there are other we are aware of it, that कुछ और बोला जाता है इसको। दूसरा हमारा choice ठीक है, डांस है, डांस folk dance, it's a very broad, इसमें मैंने etymology, this is basic solving of this question. Now let's move on to understanding, doing some bit of research about this. In this what we'll do is हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। पहला हमें इतना पता है, सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है दैट इज अली सालसाई पेंटिंग इन द बाग पहले भी पूछा जा चुका है। अजंता अजंता हो गया, अलोरा हो गया, बाग हो गया। ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन भी आया था जब अजंता के बारे में पूछा था, कौन से रिवर के पास है, देयर वर मेनी ऑप्शन। सो इट बिट इज बिट डेप्थ ऑफ इट, उसकी थोड़ी डेप्थ में इन्होंने हमें बता दिया। स्टैटिक है, इट्स लो फ्रीक्वेंसी, बट देखा जाए बाग केव्स के बारे में इतना डिटेल में जो पूछा गया है तो डिफिकल्ट भी मानेंगे हम इसको। बाग केव्स के बारे में अगर पता चले कि ये जो बाग केव्स हैं ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे बुद्धिस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री केव्स पाई जाती हैं जो कंटेम्पररी स्टाइल टू अजंता मानी जाती है। जो बाग केव 4 है जिसे रंग महल और डांस महल भी बोला जाता है, वहां पे एक फेमस फ्रेस्को पेंटिंग है जो ग्रुप ऑफ डांसर्स और म्यूजिशियंस को एक सर्कुलर फॉर्म में दिखाते हैं, और इसी को ही अपना हलिस्का हल्ली सालसा बोला जाता है। ये एसोसिएट किया जाता है भागवता कल्चर में कृष्णा की रासलीला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें हमें बुद्धा की मेडिटेटिव पोस्ट, एज आई सेड कि इट इज समथिंग व्हिच दे आर ट्राइंग टू, ये हमें क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू confuse us because Buddhism is a very popular and very important theme for Hindus. Next is Shiva Parvati on Kailasha. ये हमारे एलोरास और एल्पेंटा के पास ज्यादा, मतलब इट्स मोर प्रॉब्लम वहां पे पाई जाएगी, तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड। देन नेक्स्ट हमारा आता है, ये एक्चुअली में समुद्र मंथन जो है ये एक वैश्वनिक पुराणिक थीम से, जो इससे कोई कनेक्शन नहीं है। So this is a new word that we have. Okay. The next thing what we have is about next question place value का, ये Asian history का है, static portion है भी। यहाँ पे ना ये जो माना था, it's a very partial detail that we have.
बट फैक्चुअल डिटेल यूजुअली अगर पूछा जाता है नया नाम तो यूनिक होता है, राइट होता है, यहाँ पे राइट हमारे पास नॉलेज नहीं है, बट विद द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स जो हमने कर रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बेसिस पे, तो वी कैन से दिस बाय दैट वी कैन। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेटमेंट, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज जानी जाए। तो माना जाए कि ऑफकोर्स गुजरात से है, हमारी हिस्टोरियंस ने बताया है इसके बारे में, एंड ये अपना बहुत लाइक साइटेड की गई है, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस उसके 9th सेंचुरी से, यस, एंड वी कैन से दैट ये वाला जो पार्ट है ना ये हार्ड टू डिस्प्रूव, उसी के दे सकते हैं, हार्ड टू डिस्प्रूव में जनरल है, ऑल दे रखा है। हिस्ट्री में यूज नहीं करते थे ऑल को एज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट की तरह यूज किया जाता, बट अब ऑल की जनरल स्टेटमेंट है, तो अंडरस्टैंडिंग दी ओवरऑल दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेइंग दैट ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, जिसमें हमारा ये बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया में सेवन, जो हमारा प्लेस वैल्यू है वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन में पाया गया एज अर्ली 7th सेंचुरी, दैट इज ट्रू। अगर हम ओल्ड ओल्ड कंबोडियन संस्कृत इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें हम थोड़ा सा एक चीज जान सकते हैं जो हमें लेसन देखना होता है, जैसे एक्सट्रीम वर्ड का जो होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड का काम होता है, दिस इज व्हाट हैज प्लेड, सो दिस इज समथिंग एंड ब्रॉडली हमें फ्रेज को समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कि स्पिंडल रूल के बारे में, एज आई थिंक ये मैंने मेंशन कर दिया, एप्टीट्यूड बेस्ड ज्यादा है, so knowledge से ज्यादा एप्टीट्यूड है। यही अगर हम रिवाइज करें तो वी नो दैट देयर आर स्पिंडल रूल्स, वी हैव वेट्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ब्रिक्स कोडियार्ड हुआ करते, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इधर है, तो ये कनेक्शन की तरह है, इट्स नॉट मच नॉलेज। बट जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन, इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हमारे पास नॉलेज ये जानी पड़ेगी बरदोली और एक बरदोली सत्याग्रह एंड एकम, ये जो बरदोली सत्याग्रह है सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल, जो मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर ऑर्गेनाइज अंडर कांग्रेस, ये इसीलिए था बिकॉज लैंड रेवेन्यू का 30% इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज हो गया, ओके, एंड बॉम्बे गवर्नमेंट, एंड इट वाज अ नो टैक्स कैंपेन बाय द प्रेजेंट बट लैंडलेस लेबर्स, प्रेजेंट प्रेजेंट मीनिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एकम मूवमेंट 1921 में हुआ था, ये जो है अवध रीजन, मतलब बोला जाए तो हरदोई रीजन, अवध रीजन था, हरदोई सीतापुर, सॉरी स्पेसिफिकली सीतापुर रीजन, हरदोई होता है, यहाँ पे एक मदरासी, सॉरी मदारी पासी was the local leader, and ये peasant movement था against the oppressive rent practice, illegal सेस लगाया था, नजराना जिसे बोलते हैं, शेयर क्रॉपिंग अब्यूज हो रहा था, और ये इंडिपेंडेंट था, कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट इट, तो ये दिख रहा है ना, उन्होंने स्वार कर एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया। ये यहाँ पे लैंडलेस लेबर्स हैं, ये peasants हैं, यहाँ पे ये स्वार, ये सही किया है एनहांसमेंट, ये प्रोटेस्ट एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट, ठीक है, ये वाराणसी और मिर्जापुर ज्योग्राफी एक्सचेंज, हाँ ठीक है, तो बेस्ड ऑफ दैट, तो हम इससे बढ़ के इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। नेक्स्ट एंड एक और चीज, एक बहुत छोटी चीज जो इन्होंने मेंशन की है, एक जगह पे हम रेंट दोनों जगह बात वर्सेस यहाँ पे एक्सट्रैक्शन की बात है, यहाँ पे एनहांसमेंट की बात, ये लोग बढ़ा रहे थे, ये लोग ले रहे थे, जबरदस्ती ले रहे थे, ओके। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें भी हम देखें, इसमें अगर हम ध्यान से देखें व्हाट वी आर सीइंग, इट्स एन एप्टीट्यूड बेस्ड, ये हमें एक नई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है जो हमें ध्यान में रखने की है, बट दिस इज समथिंग विच इज एप्टीट्यूड बेस्ड देखा जाए तो, and ज्यादा इसमें एप्टीट्यूड आ गया था, सॉरी फॉर दैट, एंड इसमें हमारा लेसन क्या हो सकता है, सपोर्टिंग एविडेंस, व्हिच यू शोन फॉर द फर्स्ट टाइम, सपोर्टिंग एविडेंस, सो बाय दैट वी आर डन विद दिस होल। हम अगर इसके लर्निंग्स देखें आज की, there were research जो हमने किया उस बेसिस पे, and depending upon the individual questions we were able to go through it. तो आज की हमारी लर्निंग्स क्या, तो ये हमारी learnings, पहले के न्यू पैटर्न हम देख रहे हैं, जो पैटर्न हमने पिछले 5 क्वेश्चन में देखा था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखा है एंड 8 में। देखिए ओल्ड जो स्वैपिंग वाली टेक्निक करते थे वो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ना एंड एपिमोलॉजी जो हम लगा रहा है तो हमें क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमें देख रहे हैं कि टेट्रा इंक्रीमेंट, इवन हमने लास्ट में
टाइम देखा था क्वेश्चन नंबर 7 में मैं टाइम इंक्रीमेंट और हम जब भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा और डेप्थ एशियन हिस्ट्री में जाना एप्टीट्यूड का यूज करता है यूज ऑफ एप्टीट्यूड हम करता है बहुत सारी चीजें क्वेश्चन 6 7 8 9 सब पे हम लोग एप्टीट्यूड यूज करते हैं सो ओवरऑल हमें इसमें ब्रॉड अंदर अभी 10 क्वेश्चन में क्या पता चला आर्ट एंड कल्चर important logic and aptitude is crucial. That's all. See you all in next video.